Okay, so let us start now. So let me start by introducing myself. Dr. Mukesh Kumar, Associate Professor, UIT in Computer Science and Engineering, and I am working in the field of data analytics, machine learning, and social media analysis, along with natural language processing. So these are my research fields, and throughout the 3 or 4 months which we are having for this subject, we will be discussing analysis and design of algorithms. So I request you all to feel free to ask questions, to raise your doubts whenever you feel that you are comfortable with. And I request you to make it a two-way affair, not the one-sided only. So please make sure that your camera are switched on throughout the class, and feel free to ask any question, any doubt. We all know the pros and cons of this online teaching. So let us all try to just fill the gap and try to gain the maximum out of this course. This course is one of the most important course for computer science as well as the IT, because it is going to create the fundamentals of designing algorithms, of analyzing algorithms, and also of making the decision about selection of algorithm design strategy for the problem which is in hand. So this really is an interesting subject. So I wish you the best, and try to start with the definition. What exactly is the algorithm? I wish to have the definition from you only. What exactly you think is the algorithm? No need of any bookish definition. Just share what you feel about. Algorithm होता क्या है? हाँ जी बेटे, voluntarily कौन शेयर करेगा? What is an algorithm? हाँ बेटे, सार्थक, रोल नंबर 99, स्पीक अप. एल्गोरिथम क्या होता है बताओ? एज पर यू, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? सार्थक है यहाँ पर? और कौन बताएगा बेटा? किसी को नहीं पता एल्गोरिथम की डेफिनेशन? प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड देन शेयर. डोंट राइट इन द चैट बॉक्स एट ऑल. माइक ऑन करो, बोलो व्हाट इज एन एल्गोरिथम. Steps to solve a particular problem, outline of our code. That's all fine, but switch on your mics. हाँ जी बेटे. राघव, आप बताओ. राघव, रोल नंबर 89, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? माइक ऑन करो और फिर बोलो. क्या लगता है आपको, क्या है एल्गोरिथम? बेटे, जिन जिन से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड दे आर नॉट टर्निंग अप, आई विल बी मार्किंग देयर एब्सेंट. दैट इज एब्सेंट. ओके, तो सार्थक भी एब्सेंट है. हाँ बेटे, नवीन आप बताओ, रोल नंबर 79, क्या होता है एल्गोरिथम? So algorithm is a step of instruction to reach from one point to another point. Set of instructions to reach from one point to another point. सार्थक is absent. Okay, fine. और कोई बताओ बेटे? निश्चय आप बताओ 83. और सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, उसमें शर्म की क्या बात है? Why are you hesitating? Switch on your cameras. निश्चय आप बताइए. Sir, मतलब it is set of rules to solve a particular problem. It is a set of rules to solve a particular problem. Okay, fine. ठीक है बेटे, good. और कोई खुद से कुछ बताना चाहता है? Somebody want to add upon this? Hello, sir. Am I? हाँ बोलो बोलो. Yes, sir. It's like the outline of our code is an algorithm.
outline of our code is an algorithm. Okay, fine, correct. So सभी बेटे सभी की definitions ठीक है, but we need to put all these definitions in the simplest context, in the simplest way. So the definition of an algorithm comes up to be that a sequence of steps that if accomplished or if followed solves a particular problem. और sequence के आगे भी एक word डालना है finite. An algorithm is a finite sequence of steps that if followed accomplishes or solves a particular problem. This is the simplest and the most suitable definition of your algorithm. Just do not involve any code, any program, any language while defining the term algorithm. Because algorithm exists even when the programming language doesn't. Okay, fine. तो algorithm क्या है? एक finite sequence of steps है. यदि उसको follow करें, then it is going to solve our problem. It is going to solve the problem in our hand. So this is the simple definition of our algorithm. The contents which we are going to cover in today's lecture is that what is an algorithm, its characteristics, how to devise algorithm, then how to validate algorithm, how to analyze algorithms, how to test algorithms and algorithm specifications. So these are the contents for today's class. So we have just started what is an algorithm, and I think most of the students very correctly define the term algorithm, but they need to put it in more professional context, more professional. Never miss the term finite while defining the algorithm. Finite is the you can say force behind the term algorithm. तो एल्गोरिथम हमने देख लिया, उसके बाद कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स क्या हो सकती है एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स. वन बाय वन बेटे शेयर करो. कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है कि हमें किसी किताब से पढ़ने की जरूरत है, कोई हमें बताएगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द प्रोग्रामिंग फील्ड. यू ऑलरेडी स्टडीड 2 or 3 प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स, सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स एन एल्गोरिथम शुड कैरी. तो उनमें से कुछ बोलते रहो. हाँ बोलो. सर एक तो मतलब सिंपल हो, सिंपल हो. हाँ समझने में आसानी रहे, रीडेबल हो, और फिर साइज हो, मतलब जितनी छोटी हो सके, और क्लियर हो, मतलब ज्यादा गड़बड़ वगैरह ना हो उसके अंदर. हाँ ठीक है, फाइन. और करेक्ट हो. करेक्ट हो, गुड. चलो गुड, वेरी गुड बेटे. शिवम, वेल डन. और बताओ बेटे, शेयर करो. और सर इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट हो किससे? सर लैंग्वेज से, मतलब किसी भी लैंग्वेज में भेज सके ना. हाँ गुड गुड, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, वेरी गुड. एक एल्गोरिथम आपको लिखना चाहिए इस तरीके से, so that the person who is proficient in Java will is able to understand the algorithm and code it in Java. The programmer who is proficient in Python should understand the algorithm and implement it in Python. So your algorithm should be like this, language independent. Very good. और बताओ बेटे. सर फाइनाइट हो, मतलब विद इन नंबर ऑफ स्टेप्स में फिनिश हो जाए. हाँ बिल्कुल बेटे, वेरी गुड, वेल डन. हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन में भी क्या वर्ड डाला? फाइनाइट. द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. Finite means your algorithm should terminate when it was traced using paper and pencil. This is the most important property of your algorithm that distinguishes it from the term program. Just try to understand that a program may or may not terminate after a finite number of steps. Suppose आपका simple सा program है that your sensor based program is waiting for somebody to enter and get the door opened. So your program is waiting for infinite time. जब तक वो person नहीं आएगा तब तक गेट खुलेगा नहीं. So it is not going to end. But an algorithm should terminate when you trace it using paper and pencil. जो algorithm terminate नहीं होता, इसका मतलब वो algorithm नहीं है. उसका we need to change it. We need to put it in such a way that it terminates after a finite number of steps. बिल्कुल ठीक है. इसमें बेटे किसी को डाउट है कुछ फाइनाइटनेस में?
that the algorithm should terminate after a finite number of steps. Only then we'll say that this is an algorithm. Otherwise, it is not falling under the ambit of your algorithm. और कोई भी आपसे पूछ ले एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? दैट एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट व्हाइल अ प्रोग्राम मे और मे नॉट टर्मिनेट. फाइन बेटे, और बताओ. गुड. और बताइए प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स. और एल्गोरिदम का आउटपुट होना चाहिए. एल्गोरिथम का आउटपुट होना चाहिए. वेरी गुड. कितनी आउटपुट होनी चाहिए एटलीस्ट? सर मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए. एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए. चलो, वेरी क्लोजर, बट still need some words to put it in proper context, proper meaningful sentence. कौन करेगा इसको कंप्लीट, इनपुट और आउटपुट को? हाँ जी बच्चों. निमित, आप बताओ बेटे. कमेंट अपॉन the number of inputs which are required for an algorithm and number of outputs minimally required for an algorithm. कितनी होगी? निमित, रोल नंबर 81. पता नहीं समझ नहीं आया. अच्छा, पता नहीं चल रहा. ओके ओके, चलो ठीक है बेटे. नूर अली बताओ बेटे, रोल नंबर 85 कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी किसी भी एल्गोरिथम के लिए? नूर अली ऑप्शन. ओके, चलो. हाँ बेटे. Sir, will define input and output. Okay. Noor Ali, are you comfortable with English only, and or you are able to understand Hindi also a little bit? Noor Ali. Sir, I'm comfortable with English, but I Okay. also know some little Hindi. Okay, okay. Okay, Noor Ali, what I am asking is, what is the least number of inputs which are to be there for an algorithm? Do you have any idea that how many inputs should be there for a set of steps to be called as an algorithm? Do you have any No, idea? No, sir. Okay, fine, done. Then सौरभ बेटे, आप बताइए रोल नंबर 100. सौरभ. यस सर. सर इनपुट्स तो 0 भी हो सकती है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है. लीस्ट तो हम 0 ले सकते हैं इनपुट्स को. Okay, just But give an example दो. The algorithm having 0 number of inputs. उसका कोई एग्जांपल कोट करो. सर हैविंग 0 नंबर ऑफ inputs. कौन देगा बेटा एग्जांपल आप सब में से? This is a fact that Hello? algorithm may have the 0 number of inputs at the minimal side. तो इसका एग्जांपल देना. हाँ बेटा बताओ. Sir, if in an algorithm we have only print statement. हाँ बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट. वेल डन भाई. सिंपल सा प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट प्रोग्राम कौन किसी भी लैंग्वेज में कौन सा लिखते होते हैं हम? कौन सा लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड की इनपुट क्या होती है? नथिंग. उसमें क्या देते हैं हम? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, स्टार्ट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड. तो इस एल्गोरिथम के लिए कोई भी इनपुट नहीं है. इट मींस एन एल्गोरिथम मे हैव 0 नंबर ऑफ इनपुट्स आल्सो. ओके, just think about some manipulative functions which are acting internally, which are acting as a part of the larger algorithm or the larger program. They may be having 0 number of inputs. They may be only manipulating the variables inside of it. Okay, तो अब सेकंड पर आ जाओ. नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम की? नंबर ऑफ आउटपुट्स 1 minimum. मिनिमल 1 होनी चाहिए. 0 क्यों नहीं? Why not 0? Sir, then it will be ineffective algorithm or code. देखो हम एल्गोरिथम लिख क्यों रहे हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
यदि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है देन इट शुड गिव अस एन आउटपुट। जो आउटपुट ही नहीं दे रहा तो हमने एल्गोरिथम लिखा क्यों है? व्हाई वी आर यू कैन से वेस्टिंग द रिसोर्सिंग द ह्यूमन पावर, वेस्टिंग द कंप्यूटेशनल पावर। जब कोई एल्गोरिथम कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा तो यूजलेस है। ओके, सो एन एल्गोरिथम शुड हैव एटलीस्ट वन आउटपुट। अब आप में से कुछ कहेंगे हेलो वर्ल्ड की आउटपुट क्या है? जो भी हमने जीरो इनपुट वाला एल्गोरिथम देखा हेलो वर्ल्ड, उसकी आउटपुट क्या है? कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है स्क्रीन पर, वही तो उसकी आउटपुट है। वो आउटपुट हमें क्या सिखा रही है कि यस वी आर एबल टू रन द इनिशियल प्रोग्राम एंड वी आर ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। सो दिस इज द आउटपुट जनरेटेड बाय द हेलो वर्ल्ड। बेटा इसमें किसी को डाउट है? इज देयर एनीबडी हैविंग एनी डाउट in the number of inputs, in the number of outputs, and the third one in the finiteness property of your algorithm? कोई किसी का क्वेश्चन हो then please switch on your mic and ask. हम सर Okay. हम सर जो इनफाइनाइट लूप वगैरह वाले कोड होते हैं सर, वो उनका एल्गोरिदम फाइनाइट कैसे होता है? देखो एल्गोरिथम उनका क्या होगा, वो क्या डालेंगे हम एल्गोरिथम में? वेट फॉर द यूजर टू एंटर एन इनपुट। ठीक है, वहां पर हम इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, वो उसका वेट करता रहेगा। लेकिन जब कहता है कि वो डालेगा उसमें इनपुट, उस टाइम पे हम नेक्स्ट वाले स्टेप्स को ट्रेस करके दिखा देंगे। उसमें हम प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, मान लो उसने ये एंटर कर दिया, मान लो उसने ये एंटर कर दिया, तो एल्गोरिथम तो वहां पर ट्रेस हो जाएगा यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। लेकिन कहते हैं प्रोग्राम वहां पर वेट करता रहेगा। प्रोग्राम तो एक रियल टाइम एंटिटी है ना, एल्गोरिथम एक कंसेप्चुअल एंटिटी है, जस्ट लाइक योर फ्लो चार्ट्स। ओके सर। व्हाट इट बेटे सार्थक? सर Yes. सर जैसे आउटपुट सर जीरो भी तो हो सकती है, जहाँ पे जैसे मैनिपुलेटिव एल्गोरिदम है लाइक स्वैप एल्गोरिदम या फिर जैसे? सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हाँ, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या देता है आपको? एक लिस्ट को सॉर्ट करके देता है ना। यस सर, पर वो ठीक है सर, मतलब मैनिपुलेशन भी सर आउटपुट की तरह काउंट करेंगे? अरे मैनिपुलेशन ही तो है बेटे। आपने एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया यूजिंग स्विच केस सपोज, तो उसमें एक सम है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लिकेशन है। अब सम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो कॉल हो रही है, इंटरनली कॉल हो रही है बाय पासिंग सम आर्गुमेंट्स, लेकिन वो रिटर्न तो कोई सम कर रहा है, कोई डिवीजन कर रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वो मैनिपुलेट करके तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो वो उनकी आउटपुट ही है। किसके लिए? मेन प्रोग्राम के लिए। मेन ने उनको कॉल किया, सामने एक आउटपुट रिटर्न कर दी उसको कैलकुलेट करके, तो उसकी आउटपुट ही तो है। ओके सर, गॉट इट? चलो गुड बेटे। सो अब तक हमने बेटे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली पढ़ ली हैं। फाइनाइटनेस, एक इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट, इसको लिख लो एटलीस्ट, मतलब जीरो इनपुट होती हैं मिनिमल, और आउटपुट कम से कम उसकी एक होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम की, वो कहता है कि फाइनाइटनेस, सॉरी डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस में क्या कहता है बेटा? इसमें किसी को है आइडिया? क्या बोलेगा डिफाइनाइटनेस में? एनीबडी? एल्गोरिथम की डिफाइनाइटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है? बताओ। सर हर एक स्टेप जो है वो प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, वो प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड बेटे, प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए या फिर नॉन एम्बिगुअस या फिर अनएम्बिगुअस होना चाहिए। हर एक स्टेप, ईच स्टेप ऑफ आवर एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगुअस एंड क्लियर इन नेचर। ओके, ये क्या है? डिफाइनाइटनेस। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी रहती है वो कहता है इफेक्टिवनेस। Effectiveness means each and every step must have to contribute something towards the final solution of our problem. Got it? कि हर एक step को, each and every step which is there in the algorithm should be contributing something towards the final solution. Only then it deserves to be there in the algorithm.
So for example, we should not write an algorithm having so many print statements, while knowing the fact that print statements are not going to contribute anything towards the final solution. Their print statements are there only and only for helping the programmer to keep a track or for debugging. ये बात पॉइंट बेटे सबको समझ आ रहे हैं कि हर एक जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में इफेक्टिव होनी चाहिए, उसको इट शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फाइंड. Is it clear to all, or you are having any doubt about this? जी बच्चों, is there any doubt regarding the last characteristic? कि वो effective होनी चाहिए. Each and every statement should be effective. Okay. Now move to the next point, that is how to devise the algorithms. कि algorithms को हम devise कैसे करेंगे? How to design the. So under this heading, it says that we are having 5 or 6 algorithm design methodologies, and this exactly is the purpose of this subject. Throughout this subject, we'll be studying the algorithm design methodologies step by step. For example, we'll be first starting from the divide and conquer, then greedy approach, then your dynamic programming approach, then branch and bound approach, then your backtracking approach. So these 5 algorithm design techniques are going to be explored in this subject, and while exploring the individual techniques, we'll be learning the conceptual bindings of the approach, along with some examples, some problems which are solved using that particular approach. So this is the aim of your subject, that in this subject we are going to study 5 or 6 algorithm design methods. Fine. Now the next thing is how to validate algorithms. Validation. कि validate कैसे करें that our algorithm is working for all legal inputs provided to it. Fine. Validation का exact meaning है क्या? What do we understand by validation? Validation says if our algorithm is working for all legal set of inputs provided for it correctly or not, is called the validation. So validation के लिए भी हम आगे 2 steps follow करते हैं, 2 type के assertion follow करते हैं. One type of assertion is that the input and outputs are annotated, means are labeled, that for this set of input this is going to be our output, for this set of input this is going to be our output, and we just need to make a check upon whether our algorithm is generating or is working as according to this assertion or not. And the second assertion is that we may write some predicate rules. For example, if this kind of input is there, then the algorithm should generate this type of output. So these are the 2 steps which may be followed while validating your algorithms or while giving correctness proof of your algorithm. Fine. The validation we are going to look in the future also. Now the next point is how to analyze algorithm. अब इसका कौन बताएगा बेटा, किसको आइडिया है? वॉलंटियरली कौन शेयर करेगा हाउ टू एनालाइज algorithm? जी बेटा, बच्चों खुद से बोला कर बेटे, बी पार्टिसिपेटिव इन नेचर ऑल. Hello. जी. On basis of how much time the algorithm will take and how much storage it will take. How much time it is going to take? Time for what purpose? So for the whole completion of algorithm, how to find the particular solution what we want. Okay. And the storage, which storage you are you can say concerned about? So storage, so the extra space we required during the execution of our algorithm. Space, which space actually? So memory space. So which space? Memory space, which memory
space. Means memories are also primary memory, secondary memory. Which one? Mm, so primary memory. Primary memory. Perfect, perfect. So the analysis or the performance analysis of the algorithms consists of two parts. One is your time complexity, one is your space complexity. Time complexity means the time that is required by an algorithm to run to its completion, and the space, the primary or the main memory space required by an algorithm to run to its completion. Okay, so these are the two things which we are going to discuss in detail, and for most of the algorithm which we are going to discuss in this subject, we are going to write their time complexity also, and we are going to write their space complexity also. And not only writing, we are going to derive their time complexity. जितने भी हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो मोस्टली सबके लिए हम क्या करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे. फाइन बेटे, एक चीज और बेटे आप क्लियर कर लो, दैट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द टर्म्स एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स. दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली throughout the subject, but conceptually be clear that program is always a different term than the algorithm. On what basis? किस बेस पे अलग है दोनों प्रोग्राम और एल्गोरिथम? फाइनाइटनेस. ठीक है, फाइनाइटनेस पे वो अलग है. क्योंकि अब यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन रेज कर सकते थे, दैट सर व्हाई आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और एग्जीक्यूशन टाइम while defining the performance parameters for algorithms, because algorithms are not going to be executed on computers, isn't it? Algorithms तो रन नहीं होंगे ना बेटे कंप्यूटर्स पर. Algorithms तो एक कंसेप्चुअल एंटिटी है. रन तो क्या होना है, प्रोग्राम्स रन होने हैं. तो मैंने क्या किया, एल्गोरिथम को डिफाइन किया, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने स्पेस और मैं एग्जीक्यूशन टाइम पे ले गया. हालांकि ये मुझे क्लियर है कि एल्गोरिथम तो रन होता ही नहीं कंप्यूटर पर, मशीन पर. तो इसका मतलब क्या है, व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज दैट ईच एंड एवरी एल्गोरिथम इज रिटन फॉर अ मशीन दैट इज कॉल्ड एज रैम. ठीक है, कहता रैम पर लिखे हुए हैं. अब रैम जो है, रैम अपने आप में बड़ी ही एक सिंपल सी मशीन है जो सिंपलेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करती है. रैम इज अ मशीन दैट सपोर्ट वेरी बेसिक ऑपरेशंस व्हिच आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर एल्गोरिथम, जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है बच्चों, कोई हाउ टू एनालाइज एल्गोरिथम्स, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो प्लीज आस्क. है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ टू टेस्ट एल्गोरिथम्स. कि एल्गोरिथम्स की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे. हमने एल्गोरिथम बना लिया, हमने एल्गोरिथम को वैलिडेट भी कर लिया, नाउ वी नीड टू टेस्ट द एल्गोरिथम. अब टेस्टिंग के दो पार्ट्स आगे आते हैं, कहते हैं वन इज डीबगिंग एंड वन इज प्रोफाइलिंग. व्हाट एग्जैक्टली इज डीबगिंग? डीबगिंग क्या होती है, बताइए कोई भी क्विकली. एरर्स को रिमूव करना अपने सॉफ्टवेयर से. एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करना. डन, करेक्ट श्रेयस? पहला काम तो क्या है, एरर्स को फाइंड आउट करना, दूसरा क्या है, उनको रिमूव करना. बिल्कुल परफेक्ट. तो कहते हैं डीबगिंग भी अपने आप में क्या बताती है, इट टेल्स यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एरर, है, नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ एरर. थोड़ी सी फिलोसफिकल सोच में इसको लिखता है. कहता है कि डीबगिंग ऑलवेज फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एरर एंड इट जस्ट डू नॉट गिव यू एनी हिंट अबाउट द एब्सेंस ऑफ एरर, कि कौन कौन सी और एरर्स इसमें हो सकती थी, है ना, वो ही आपको नहीं बताता. उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू कीप टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग. मे बी किसी और इनपुट में ये किसी और तरीके से बिहेव करे, किसी और इनपुट में वो करेक्ट रिजल्ट ना दे रहा हो. ओके, तो इसका एक पार्ट कहते हैं डीबगिंग है. नेक्स्ट कहता है प्रोफाइलिंग. प्रोफाइलिंग में क्या कहता है, प्रोफाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और
analyzing an algorithm from the viewpoint of space complexity and time complexity. This is termed as your profiling. So आपकी जो testing process है, that consists of two parts. One is debugging and second one is profiling. Now the next point is algorithm specification. What are the tools? What are the existing tools which may be followed for writing algorithms? तो कहते दो ही चीजें हैं. Only two things are there. One is pseudocode convention and second one is recursive algorithm. We follow two kinds of algorithm specification tools. One is the pseudocode and second one is recursive algorithm. Pseudocode कौन बताएगा बेटे? क्या होता है pseudocode? हाँ बेटे, सुखनदीप बताइए, रोल नंबर 109. सुखनदीप. Sir, it is similar to an original code, but we do not have to follow all the hard and fast rules of any programming language. Okay, fine. Good, nice one. और बता बेटे, तमन्ना. बच्चों खुद से बेटे वॉलंटियरली सब वो करो बेटे, पार्टिसिपेट करो सभी को प्लीज. Sir, it has more mathematical notations than algorithm, and It has more mathematical notations than algorithm. Actually, pseudocode is the way to write algorithms. So we are not differentiating between pseudocode and algorithm. We are going to define the term pseudocode. Getting Nimit? yes, sir. So we need to speak in that context only. Okay, so pseudocode, sir, it is a shorter form of a program. Like we can, so it is not a proper form of program, but it uses English too and like programming concepts too. But it is not proper English and not a proper program. Good. Well done. So unknowingly, आपने दो terms बोली यहाँ पे, English and maths. Both are very important while defining or while explaining the term pseudocode. So pseudocode is the mixture of mathematics and English, just to convey or just to write the steps to be followed for solving a particular problem. Is that fine to all? कि इंग्लिश और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, किसके लिए? बाय द लेमैन आल्सो, कि जो लेमैन को भी अंडरस्टूड हो. मतलब कि क्या है, हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, मैथ्स और इंग्लिश यूज करो, क्योंकि बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश सभी को आती है. आर्ट्स वालों को भी आती है, कॉमर्स वालों को भी आती है, लॉ वालों को भी आती है, सबको आती है. तो हमें कुछ ऐसा कंटेक्स्ट, कुछ सिंटैक्स फॉलो करना है जो कि अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल. तो वो सिंटैक्स है क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? स्यूडोकोड बोलते हैं. तो हम हमेशा स्यूडोकोड में अपने एल्गोरिथम्स लिखेंगे. फाइन. किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्यूडोकोड? ओके. नाउ नेक्स्ट इज द रिकर्सिव एल्गोरिथम. रिकर्सिव एल्गोरिथम्स कौन बताएगा? उदेश. 117. सर इसमें वही होता है जिसमें कि एल्गोरिदम कॉल्स इटसेल्फ फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम. Good. A function or an algorithm calling itself is termed as recursive algorithm. Recursive आया कहाँ से? आपकी मैथमेटिक्स की टर्म होती है. कौन सी? रेकरेंस रिलेशंस. पढ़िए कभी रेकरेंस रिलेशंस. f of n is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2. A term defined in its own term is called as recurrence relation. तो पहले तो होती थी प्लस 1 प्लस 2 में, उनको सॉल्व करते होते थे हम. अब पता नहीं है नहीं आपके पास. तो रेकरेंस रिलेशन से ही टर्म आई है मेरी रिकर्जन. A function or an algorithm calling itself is called as recursion and the algorithm is called as recursive algorithms. So ये दो तरीके के algorithms हैं बेटे which we are going to follow. और recursive algorithms in themselves are going to be written in pseudocode. Is that clear? Algorithms दो तरीके के होंगे, pseudocode दो तरीके से लिखे जाएंगे. pseudocode में लिखे जाएंगे और रिकर्सिव फॉर्म में लिखे जाएंगे. जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होंगे वो भी अपने आप में pseudocode में लिखे जाएंगे. ओके. तो कहता है दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन और यू कैन से सम बेसिक स्टेप्स व्हिच वी शुड नो
before starting the analysis and design of algorithm. Now move to the next one. What it says is that let us discuss the pseudocode conventions. कि pseudocode की कुछ conventions हैं, वो है क्या? Pseudocode की कुछ points हैं. पहला point क्या है? That comments should begin with इससे फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश. कहता है इससे हमें कमेंट्स जब भी लिखना होगा इससे लिखेंगे. डन. उसके बाद क्या कहता है? ब्लॉक्स आर इंडिकेटेड विद द बिगिनिंग ब्रेस एंड एंडिंग ब्रेस ऑफ योर सी लैंग्वेज. हमेशा ब्लॉक्स होते क्या है? कौन बताएगा बेटे? ब्लॉक्स होते क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ब्लॉक्स? वैभव आनंद आप बताओ बेटे, ब्लॉक्स क्या होते हैं? कोई आइडिया है? वैभव आनंद एब्सेंट. वैभव आनंद, ठीक है. ब्लॉक्स का मतलब क्या है बेटे यहाँ पे? आप बताओ बेटे उत्तम संधू. ब्लॉक्स सर डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड्स हो सकते हैं, जैसे एक बड़ा कोड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, एग्जांपल लेकर बताओ. सर जैसे एक बड़ा कोड है, उसमें कोई वाइल लूप है, वाइल लूप का एक ब्लॉक बना सकते. असल में क्या होगा ना कि बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेकआउट कर दिया. हर एक जो सब टास्क है वो एक आउटपुट जनरेट करता है, वो मे बी नेक्स्ट वाले टास्क की इनपुट हो. जैसे आपका इफ एल्स ब्लॉक हो गया, फोर वाला एक अलग ब्लॉक हो गया, वाइल डू वाइल वाले आपके अलग ब्लॉक्स हो गए. ऐसे ही आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया आपके जैसे सामने पॉइंट नंबर 3 में, वो एक अलग से ब्लॉक. तो कहता है जो ब्लॉक्स की बिगिनिंग होगी वो बिगिनिंग ब्रेस से होगी या फिर ओपनिंग ब्रेस से, और जो उसका एंडिंग होगा वो क्लोजिंग ब्रेस. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एन आइडेंटिफायर बिगिंस विद अ लेटर. ठीक है, यहां पर आइडेंटिफायर क्या है? व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? वेरिएबल. ओके, वो हमेशा लेटर से बिगिन होता है. यही कन्वेंशन आप किसी भी सी में फॉलो करते हो, पास्कल में फॉलो करते हो या नहीं? ये हमेशा एक वेरिएबल एक लेटर से शुरू होना चाहिए. तो बिल्कुल सेम कन्वेंशन यहां पर है. नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बेटे, फोर्थ. कहता है जो असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू ए वेरिएबल इज डन यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट. ये तो हम फॉलो करते हैं बेटे, सिंपल है. स्यूडो कोड में कुछ अलग से नहीं है. वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाओ. तो फोर्थ क्या है कि असाइनमेंट होगी, वो जो वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा और जो एक्सप्रेशन है वो राइट साइड में रहेगा. उसके बाद क्या कहता है? देयर आर टू बुलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली. सिक्स स्टेप में क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एक्सेस यूजिंग जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स है. स्क्वायर ब्रैकेट में खाली आई है, इट मींस वो वन डायमेंशनल एरे है. आई और जे है, इट मींस वो 2D है. आई जे और के है, इट मींस वो 3D एरे. दिस इज द कन्वेंशन टू बी फॉलोड. सेवंथ क्या है? जो लूपिंग होगी फॉर वाइल एंड रिपीट लूप्स के लिए, वो इसने दिखाई है. कहता वाइल within bracket condition, then the set of statements which are supposed to be there in this block, and after the last statement we need to put a closing brace. So this is the convention for writing your controlling loop. Fine बेटे, is that okay? ऐसे इसने जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप दी है एंड में. तो कहता है ये कुछ कन्वेंशन है जो हम स्यूडो कोड में फॉलो करेंगे, जो भी हम एल्गोरिथम्स लिखेंगे. अब जो एट्थ है, एट्थ में क्या देता है? द कंडीशनल स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग फॉर्म: इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, इफ कंडीशन देन एल्स. सिंपल बेटा आपके स्टेटमेंट्स ही हैं जो ऑलरेडी आप यूज करते हो. नाइन्थ क्या है? द इनपुट एंड आउटपुट आर डन यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस रीड एंड राइट. जो आप प्रिंट करते हो, जो आप स्कैन करते हो सी में, उसकी जगह क्या करना है हमें? रीड एंड राइट. कोई फॉर्मेट अलग से होने की जरूरत नहीं है. 10th में क्या कहता है? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्रोसीजर, दैट इज द एल्गोरिथम. बाकी में तो काफी सारे प्रोसीजर होते थे ना, यहाँ पर क्या है? खाली एल्गोरिथम है. एन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ अ हेडिंग एंड अ बॉडी. तो एल्गोरिथम का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स टू बी पास्ड. ठीक है, तो कहता है ये सिंपल सी कन्वेंशन है बेटे. अब ये कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं ऑफ द एल्गोरिथम बीइंग रिटन इन स्यूडो कोड.
तो आप दोनों को अंडरस्टैंड करके बताओ बेटे इनको कि पहला क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं। सभी लोग अंडरस्टैंड करो, फिर मैं किसी से ही पूछूंगा। 2 मिनट लगाओ बेटे, 2 मिनट लगाओ सभी लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एल्गोरिथम। चलो बेटे यश आप बताओ, रोल नंबर 125। यश पहला एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो, क्या कर रहा है ये। सर पहला एल्गोरिथम एरे का मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। सर स्टेटमेंट वाइज रिजल्ट में वो सर पहले रिजल्ट नाम के आइडेंटिफायर में एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर रहा है। फिर एक लूप चल रहा है सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। और सर वो जो रिजल्ट है वो एरे का जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट एआई, वो जो रिजल्ट था उससे कंपेयर हो रहा है। अगर एआई रिजल्ट से बड़ा है तो रिजल्ट की वैल्यू एआई इक्वल कर दी जा रही है। ओके वेरी गुड, गुड, वेल डन। अच्छा एक कन्वेंशन और जो फॉलो करनी है बेटे, इन स्यूडो कोड द एरे इंडेक्स is supposed to be started from 1 not from 0 as the convention followed by C and your Python. Got it? यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा एरे इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है हमेशा। डन। चलो बेटे मयंक वाधवा आप बताओ बेटे सेकंड एल्गोरिथम क्या कर रहा है। खाली हिंट चाहिए मुझे, नॉट द एग्जैक्ट फंक्शनिंग। क्या आर यू अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम टावर्स ऑफ हेनोई? यस सर। हाँ क्या होता है इसमें? सर इसमें हम डिस्क्स को दूसरे टावर में शिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ी सबसे नीचे होती है और सबसे छोटी सबसे ऊपर होती है। ओके तो ये एल्गोरिथम आपके सामने लिखा है, आर यू गेटिंग दिस? चलो कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक्चुअली आज की मेरी जो क्लास थी, आप भी सोचोगे कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछे बिकॉज यहाँ पर जो आज वाली क्लास की ज्यादातर चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। The purpose was also just to gain insight about you, how much you already know and how much vocal and how much interactive you are. So this was the purpose of today's class. From today onwards we'll be studying from the first chapter, that is the complexity analysis, big O, etc. From today onwards we'll start. अब एक बार बेटे एक बार अटेंडेंस में आपकी ले लेता हूँ। तो सबको यस नो में जैसे कन्वेंशनल अटेंडेंस आप मार्क कराते थे वैसे ही करानी है सबको। कहाँ से शुरू है आपके रोल नंबर्स? रोल नंबर कहाँ से शुरू हुए? 65। एक मिनट बेटे। अच्छा दूसरा जो आपके अभी आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिखाई दे रहा है? यस सर। तो बच्चे ये आपका सिलेबस है, PSC 4 SEM एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस। तो इसका फर्स्ट यूनिट हम कल से शुरू करेंगे रिविजिटिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिस वन। अब जो बेटे इसके लिए जो बुक्स हैं, जो नॉर्मली आप लोगों का क्वेश्चन होता है फर्स्ट ही, तो कहता है ये वाली बुक जो 2 बुक्स हैं ये these are going to be consulted, these are going to be followed throughout the subject। और एक बात और है कि ये 2 बुक्स ही हैं, बाकी की जितनी भी बुक्स हैं mostly from Indian authors and also from foreign authors also, they are just referring these 2 books, one or even both of these। तो ये अपने आप में बेटे more than enough है। बड़ा ही अच्छा लिखता है दोनों ही बुक्स में। तो इन दोनों बुक्स में से ही आपका पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। तो आपको ई बुक भी पीडीएफ भी बड़ी इजी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, थोड़ा आप सर्च करोगे। ओके तो ये आपकी दोनों एज टेक्स्ट और एज रेफरेंस बुक्स यूज होंगी। डन। चलो अब बेटे आप लोग सभी 2 मिनट के लिए अपने अपने कैमरा ऑन करोगे और अटेंडेंस मार्क कराओगे। मुझे दिखना चाहिए कौन कौन है। 55 से शुरू होते हैं रोल नंबर्स। 31065 अब ऐसे आगे स्टार्ट होता है। ओके 065 से शुरू होते हैं। ओके तो रोल नंबर 65 एब्सेंट।
Present. Okay. 6. Present, sir. Okay. कौन है बेटे 6? Okay. 67. बेटे Present, sir. जिसकी अटेंडेंस होगी वही माइक ऑन करेगा, वही बोलेगा. 67 मनरूप. Okay. 68. 68 absent. 69. Present, sir. 69. 70. Present, sir. 70 बेटे कौन है? मयंक. 70 नाम क्या बेटे? ओके. Yes, sir. 71. 71 absent. 72. 73. Present, sir. 73 मनाली. ओके. Present, मोनिक. sir. sorry 74. 75. Present, sir. उसका ओके. 76. Present, sir. 77. Present, sir. 78. 79. Present, sir. 80. 79. Present, sir. टाइम से बोला कभी यार. 80. Present, sir. 81. Present, sir. बच्चों ये निखिल कुमार बेटे अपना रोल नंबर इसमें है, वो करो, प्रीफिक्स करो. सभी लोग अपने नाम के आगे रोल नंबर को एज प्रीफिक्स डालो. 81 निखिल. Present, sir. ओके. 82. हाँ बोलो. 81 निमित, sir. 81 निमित. ओके डन. 82 absent. 83. 84. 85 बेटे जो छोड़ के अपना भी बता देना. 85 present, sir. 85%. 86. 87. 88. 89. 90. Present, sir. 90%. 91. 92. 93. Present, sir. 93. 93. 94. 95. 88 96. present. कौन? अरे 88 अभी एब्सेंट मार्क हो रखा है, बाद में बात करना. 95 बेटे प्रेजेंट हो. 95. 95 एब्सेंट. 96. 97. 98. 99. Present, sir. 99. 100. Present, sir. 101. Present, sir. 102. Present, sir. 3. 4. Present, sir. 5. 5. 6. 7. Present, sir. 8. 9. Present, sir. 10. Yes, sir. 11. Present, sir. 12. 13. Present, sir. 13. 14. Present, sir. 14.